My first introduction to Guru Maharaj Ji happened through a documentary film made maybe 50 plus years ago. And I saw this great man dance on top of fortresses, play tabla. So I thought he is probably a Maharaj of a princely state who was also interested in fine arts. Later, I found out I was wrong, and he was a bigger Maharaja than what I thought. He's Guru Maharaj. And he came from a tradition of Mahagurus, and I became his fan and kept reaching out to places where he would perform. I have seen him perform once in Chennai. Then, much later, many years later, after Ek Duje Ke Liye, he came to perform in Vizag, and I was in the audience, and I went and I told him that I also was a student of dance, but never had the fortune of studying under him. He said, "Ek din ho jayega, aayega. Come to Delhi, you can join my class." It never happened, but then it nearly 35 years after that, I met Maharaji and requested him to come and compose for my film. I think as a student, my zenith was achieved when I sat under his feet and learned the nuances. So many stories. I think that he said, "You're all right, you did fine," was the biggest compliment I received in my life. I don't think that usually people say that it's a great loss. Instead of looking at the negative side of things, that we had him amidst us is a great benefit, profit for artists like me. He has left behind many people, many disciples who will carry on the tradition, the memories. So instead of complaining about his absence, we'll be grateful for having been among us and also having the largeness of heart to impart his art to anyone and everyone. I'm one of those students who didn't even attend regular classes, but he gave me his art as freely as he would his best student. I'm ever grateful to Maharaji and will always remember him. And India will always be proud of a great artist like him. And thank you, Maharaji, for leaving behind a tradition of students who will remember you and carry on your style. Namaskar. नमन है पंडित श्री बिरजू महाराज जी को, नृत्य के सम्राट, कथक नृत्य के सम्राट। क्या नहीं था उनमें। ही वॉज क्रिएटिव, ही वॉज कोरियोग्राफर, ही वॉज पोएटिक। गाते बहुत सुंदर थे। कोई भी परकशन उनके हाथ में, तबला हो, नाल हो, ढोलक हो, पखावज हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ में आ जाए। सरोद बजाने का बहुत शौक था। इतना सुंदर बजाते थे। तबला, नाल, ढोलक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। लेकिन समझ में नहीं आता, आना जाना तो लिखा ही है जीवन में इंसान का, लेकिन इनकी याद कुछ अजीब सा लग रहा है कि महाराज जी कहाँ गए। अभी अभी तो थे। हाल ही में उनकी मृत्यु से पहले मैंने उनसे बात की थी, कोई 4-5 दिन पहले। मन आया कि महाराज जी को फ़ोन करूं, क्योंकि एक दिन मेरे सेंटर में आए थे वो। रात को यहीं बैठे हुए थे, खूब कहानी किस्से, हम 5-6 जने थे। तो उन्होंने बड़े किस्से सुनाए,
फिर साथ में खाना भी यहीं खाया। फिर निहारते रहे मेरे सेंटर को, बाहर की तरफ बड़े बड़े पेड़ निहारते रहे। कहते हैं कि उमा मैं रात को आया हूँ, अब मैं दिन में भी आऊँगा। मैंने कहा मैं आपको ज़रूर लाऊंगी, इसीलिए मैंने फ़ोन किया उन्हें। तो कहने लगे कि उमा मेरे डायलिसिस शुरू हो गए हैं और मुझे कोविड भी हो गया है। मैंने थोड़ा हल्का डांटा उन्हें कि महाराज जी आपसे मैंने कहा था भीड़ में मत जाइए, आप अलग से रहिए। पर जब जाना होता है तो जाना ही होता है। बहुत पुरानी बातें हैं। जब भी मैं और महाराज जी मिलते थे, मैं बचपन से उन्हें जानती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बहुत छोटी थी तो मैं बहुत घबरा गई। मुझे 7 मिनट का आइटम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसकी में प्रस्तुति करनी थी। तो मेरे पिताजी को कहीं से महाराज जी मिल गए जो हाल ही में दिल्ली में पहुंचे थे। से पहले इनके पिताजी अच्छन महाराज जी सिखा रहे थे संगीत भारती में। ये उस समय बिरजू महाराज जी नहीं, बृजमोहन के नाम से मशहूर हुए। आए, उन्होंने मेरा आइटम बनाया और कहने लगे घबराती क्यों हो। फिर उन्होंने मुझे 3-4 टुकड़े सिखाए और मैंने प्रस्तुति की। तो जो बचपन की यादें, उसके बाद हम लोगों का सब मिलना जुलना। जब मैंने भारतीय कला केंद्र ज्वाइन किया, वहाँ पर ये बैले कोरियोग्राफी के लिए डिपार्टमेंट सारा इनके अंडर था। उसके अलावा सिखाते भी थे ये। मेरे भाग्य थे कि मुझे इनके चचा गुरु श्री शंभू महाराज जी और गुरु सुंदर प्रसाद जी और गुरु बिरजू महाराज जी जैसे हीरे मौजूद थे। इनसे मेरी शिक्षा मुझे प्राप्त हुई और हम सीखते रहे। रात रात भर इनके बैले प्रोडक्शन होते थे, उनमें मेरा रोल मुख्य रूप से हुआ करता था। रात रात भर हम लोग प्रोडक्शन का काम करते थे। हंसी मजाक, जोक्स, किस्से, बड़ा माहौल अच्छा था। वो दिन याद करते थे मैं और महाराज जी। वो बड़े किस्से सुनाते थे महाराज जी। लेकिन इतना जीनियस कलाकार चला जाए, बहुत दुख होता है, बहुत दुख। वो क्या गुण नहीं थे उनमें। गायक, ठुमरियाँ लिखना, पोइट्री लिखना, पेंटिंग करना और उसके बाद नृत्य करना। नृत्य क्या उनका, क्या खूबसूरत लयकारी, बैठ के भाव बताना, क्या नहीं मौजूद उनमें। सब कुछ ही वॉज अ पोएटिक। बहुत गुणी थे, बहुत गुणी। सारे परकशन इंस्ट्रूमेंट वो बजाते थे, तबला क्या, ढोलक क्या, नाल क्या, पखावज क्या, इत्यादि इत्यादि। सरोद बजाने का उन्हें बड़ा शौक हुआ और बजाते हैं। सरस्वती उनमें विद्यमान थी। मैं तो ये समझती हूँ आज वैकुंठ पहुंचकर भी वहाँ वो नृत्य कर रहे होंगे। अप्सराएं सब स्तब्ध रह गई होंगी। वहाँ पे शिवजी भी आए होंगे अपना डमरू लेके, और क्या अच्छा नृत्य हो रहा होगा। महाराज जी, आपको बहुत मिस करती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता कि पिछली जन्माष्टमी को 21 में मैंने आपकी ठुमरियों की प्रस्तुति की, आपने धुनें बनाई, इतनी सुंदर धुनें बनाई। अब फिर से प्रस्तुति करने वाली थी आपकी ठुमरियों की, मैं किससे धुन बनवाऊंगी, आप तो हो नहीं। पर प्लीज़ जहाँ भी हैं आप मुझे धुन बना के भेज दीजिएगा।
मैं उनकी प्रस्तुति करूंगी। स्वामी हरिदास में हमने बिरजू महाराज जी को सम्मानित किया। वो आए, बड़े खुश होकर बैठे रहे। बार बार मुझसे पूछते कि उमा अब मैं जाऊं, क्योंकि वो थोड़े से अस्वस्थ चल रहे थे। तो मैंने कहा अभी थोड़ा और बैठिए। महाराज लीला जो हमारी बिरला मंदिर में होती है उसको देखने आए। वहीं पूरी महाराज लीला उन्होंने देखी। स्टेज पर आए, सब बच्चों को आशीर्वाद दिया। बड़ा विशाल हृदय था महाराज जी का। क्या नाचते, क्या खूबसूरत ग्रेसफुल नाच, क्या लयकारी, क्या बजाना, क्या गाना, क्या पेंटिंग करना, क्या पोइट्री। सारे गुण तो उनमें मौजूद थे। बड़ा हंसी मजाक मेरा होता था उनसे। और इधर हाल में तो मैं बहुत उनसे मिलने लग गई थी। महाराज जी आपको मैं बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ। आप आइए और मेरी ठुमरियों की बंदिश जो आपने लिखी हैं उनकी धुनें बनाइए ताकि मैं उस पर भाव बता सकूं। कैसे कहूं, क्या कहूं। एक उनके बेले का शेर था, क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता, हाय चुप रहा नहीं जाता। महाराज जी आप कहाँ हो, आइए ना। आपकी हमेशा इंतज़ार करती रहूँगी मैं, आपको हमेशा बुलाती रहूँगी, भूलूंगी नहीं। आप आए, अवश्य आए, आपका इंतज़ार रहेगा। आपको प्रणाम, हमेशा प्रणाम करती रहूँगी। Namaskar. I am Rita Mustafi from Minnesota, USA. I like to take this opportunity to thank Shashwati, my Guru Bon, and of course Kalashram for creating such a beautiful tribute to our Guru, Pandit Birju Maharaj. My small offering would be performing a paran in Chhata. Na, thi, thi, na, ti, na, ti, ti, na, dha, ta, ka, tunga, dha, ta, ka, tunga, dha, ta, ka, tunga, dha, de, di, de, ta, dha, dinga, dha, dinga, dha, dinga, de, ta, de, ta, de, ta, kirdha, ta, ka, tunga, ta, ti, te, ta, ka, ti, te, ka, ta, ga, di, gi, ne, ti, te, ka, ta, ga, di, gi, ne, dha, ti, te, ka, ta, ga, di, gi, ne, ti, te, ka, ta, ga, di, gi, ne, dha, kata gadi gine, titi kata gadi gine, tina, 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 ta, na, ti, na, dhata katunga, dhata katunga, dhata katunga, dha, de, di, de, da, dhatinga, 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 dita, 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 taka tunga, dhati, dita, ka, kata gadi gine, titi kata gadi gine, dhati, te, kata gadi, titi kata gadi gine, dhati, te, kata gine, titi kata gadi gine, tina. नमस्कार। आज महाराज जी का जन्मदिन है और हम सब उसको मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस जन्मदिन पर बड़े आनंद और उल्लास के साथ महाराज जी को याद किया जाए और
उसी कड़ी में आपके साथ एक दो संस्मरण है महाराज जी के साथ जो आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। मुझको याद है कि जगजीत जी का 70वां जन्मदिन हम मनाने वाले थे श्री फोर्ट में, और ये तारीख थी 26 फरवरी 2011, और महाराज जी से मिलने हम 7 फरवरी को गए थे, क्योंकि जगजीत जी महाराज जी को खुद आमंत्रित करना चाहते थे। तो 7 फरवरी को एक वर्कशॉप महाराज जी की दिन भर की चालू थी, तो उन्होंने कहा कि भैया जगजीत जी को तुम वहीं ले आओ। तो हम लोग करीब 12:30-1 बजे वहाँ पहुँचे थे, ये सोच के कि एक आधे घंटे मिलके उसके बाद लंच वगैरह करके और निकल जाएंगे। 12:30 पहुँचे हैं, और जो महाराज जी का अनवरत पढ़ंत सिखाना जो चालू था, जगजीत जी के पैर नहीं हिले वहाँ से। और फाइनली ऐसा हुआ कि 6:30 बजे फंक्शन था, और मैंने कहा अंकल अब निकलना है, अपने को जाके तैयार भी होना है। कहते तैयार वैयार तो हो जाएंगे यार, वहीं हॉल में ही तैयार हो जाएंगे। ऐसा मौका कहाँ दोबारा मिलेगा, ऐसा सीखने समझने का, और ऐसा अनुभूति महाराज जी के साथ जो उनको हो रही थी। तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन करके साथियों को बोला कि भाई मेरे कुर्ते पैजामे सब वहीं श्री फोर्ट में ले आना। और यहाँ से वो 6:05 पे निकले, हम 6:25 पे पहुँचे, और 5 मिनट में चेंज करके फिर वो हॉल में बैठ गए अपना कार्यक्रम करने के लिए। तो ऐसा महान व्यक्तित्व था महाराज जी का, और सब कला से ही निहित था कि मतलब उनकी कला के वश होके ही लोग उनके प्रशंसक और उनके मुरीद बन जाते थे। और ऐसा सबके साथ होता, हमारे साथ भी हुआ था। बड़े बड़े कलाकारों के साथ ये होते हुए देखा मैंने, बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ, बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ ये होता देखा है। तो मुझको अच्छे से याद है कि जब दिल्ली में ये फंक्शन ख़त्म हुआ तो गुलजार साहब ने एक चीज़ बोली थी कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन रहेगा, कि आज मुझको महाराज जी के साथ एक्चुअली और मंच साझा करने का मौका मिला। और उसी संदर्भ में मुझको गोवा का भी एक प्रसंग याद आता है, जब इफ़ी गोवा के लिए महाराज जी एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, हम उसका कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। तो धूप में बैठ के अनवरत ढंग से उन्होंने 3 दिन वहाँ पर रिहर्सल कराई, और मुझको बोलते कि कहाँ फंसा दिया भैया तुमने फिल्मी लोगों के बीच में। तो मैंने कहा नहीं, ये फिल्मी लोग नहीं है, आपकी कला के मुरीद हैं, और आप अगर ये करेंगे तो जाके इन फिल्मी लोगों को आगे एक दिशा मिलेगी कि किस ढंग से कला का समावेश करना चाहिए उनके प्रस्तुतिकरण में। तो वो भी बहुत अनूठे पल थे जो महाराज जी के साथ बिताए, और उनके साथ बैठ के इतनी सारी चीज़ें सुनने मिलती थी, और मतलब इतना अद्भुत आनंद होता था कि उनके साथ बैठ के आप 6 घंटे बिता सकते थे, और आपका काम मतलब आपको वो ऊर्जा मिलती रहती थी, आप अपना काम भूल जाते थे, आपको सिर्फ ऊर्जा मिलती थी। और इन प्रसंगों के साथ महाराज जी को मेरा सादर नमन, और आशा है कि सभी महाराज जी से जुड़े हुए कलाकार, शिष्य, परिवार जन और इस कला को आगे बढ़ाते रहेंगे, ताकि हमारे देश में जो हमारी रिच हेरिटेज है वो बच्चों तक बचे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शत शत प्रणाम महाराज जी। सन 1965 में सवाई गंधर्व म्यूजिक फेस्टिवल के मंच पे बिरजू महाराज जी का नृत्य देखकर मैं विस्मय चकित हो गया। काहे रोकत डगर प्यारे नंदलाल मेरे, इस ठुमरी पर उनका भाव दर्शन देखकर मैं भाव विभोर हो गया, और तभी से महाराज जी मेरा श्रद्धा स्थान बन गए थे। उसके बाद कला छाया में मेरी बहन जयश्री सीखने लगी, तब मैं उनके साथ जाता था। कार्यक्रम के बाद महाराज जी प्रभा जी के घर पर घंटों तले गजल और ठुमरी की महफिल जमाते थे। तब मैंने उनके साथ तबला बजाने बैठ जाता था। मैं उनके चेहरे के भाव तो नजदीक से देखता था, लेकिन मुझे
स्वर भाव ज्यादा आकर्षित करते थे और अचंभित करते थे। बम्बई के एक प्रोग्राम में दशावतार का आइटम बजाने मुझे वो ले गए। उस प्रोग्राम में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मुझे विश्वास है कि नृत्य के सारे उपासक और संगतकार महाराज जी को भगवान मानते हैं। एक संत कवि ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त देखी तीन तैसे। ओम शांति शांति शांति। शत शत प्रणाम। भारतीय संस्कृति में परब्रह्म की संकल्पना है। मैं महाराज जी को परब्रह्म मानती हूँ। मैं उनको सिर्फ नृत्य के नहीं, मेरे जीवन के गुरु मानती हूँ और मेरे वो दैवत है। मैं उन्हें संत कथक मानती हूँ। पूना में काफी कथक सीखने के और उसमें यश भी पाने के बावजूद मेरी खुशी कुछ अधूरी सी रहती थी। अस्वस्थ चित्तों को कुछ खोज थी। 1959 की एक भाग्यशाली दिन मुझे वो प्रकाश रेखा दिखाई दी। बम्बई के बिरला मातुश्री सभागार के रंगमंच से मुझे बिरजू महाराज नामक कथक नृत्य सौंदर्य तत्व का साक्षात्कार हुआ। मेरे उस साक्षात्कार में मेरे नृत्य जीवन का मोड़ ही बदल दिया और मैं बिरजू महाराज के पास सीखने दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में उनके पास 4-5 साल डट के सीखने के बाद मेरे मन में पूना वासियों के लिए इस ललित मधुर शैली का परिचय करा देना ये निश्चय हुआ और मैंने पूना लौट के कला छाया संस्था की स्थापना की। उसके बाद मैं महाराज जी को हर साल प्रोग्राम करने पूना बुलाती रही। वो आते रहे, मेरा काम देखते रहे। 4-5 साल के बाद मेरे विद्यार्थियों की प्रगति देखकर मेरे ही नहीं, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहे सदा सही काम करने वालों पर। इस आशीर्वाद के साथ उन्होंने मुझे अपना गंडाबंद शागिर्द के नाते स्वीकार किया। स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी जी के आज्ञा अनुसार अपने नृत्य से ही मेरे उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। 1976 में मैंने भास्कर चंदावर जी के प्रोत्साहन से चित्रम खानोदकर रचित प्रतिमा काव्य पर नृत्य नाट्य बनाया। उसका प्रयोग दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में करने का हौसला जब मैंने बनाया, तब महाराज जी ने हमारी तालीम उसके पहले 2 दिन देखी और मुझे मौलिक सूचनाएं कर दी, जैसे कि नृत्य नाट्य बनाने की शिक्षा भी मुझे दी। कई सालों से महाराज जी के मन में एक अपना कथक शिक्षा पीठ बनाने का सपना था। वो सपना उनके 80 साल के जन्मदिन पर पूर्वजों के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से वो सपना साकार हुआ। महाराज जी ने अपने लखनऊ के पुश्तैनी घर में कथक के लिए एक अनूठा संग्रहालय बना के समाज का ऋण चुकाने का भी एक औचित्यपूर्ण कार्य किया है। इन दोनों सपने पूरे होने के लिए उनके कुटुंबियों के साथ शाश्वती सेन जैसे कथक को जीवन अर्पण किए हुए शिष्यों का बहुत बड़ा हिस्सा है। इन सबको कलाश्रम के भविष्य के प्रगति के लिए सक्षम रखे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और इसी प्रार्थना के साथ
मैं महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।